नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल नियर वेबल IT पार्क NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013 861 7327 062 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल लोकसभा केंद्र के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के 100 नंबर वार्ड अंतर्गत DPS मोड़ पर TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन आज देखा गया कि उन पोस्टरों को किसी ने फाड़ दिया है। इसे लेकर स्थानीय TMC नेतृत्व ने विरोधी पक्ष पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि विरोधियों को ये पता चल गया है कि यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित है, इस वजह से वो डर गए हैं और इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि TMC को पूरा विश्वास है कि विरोधी पार्टियों को जब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से उनका जीतना मुश्किल है तो उन्होंने इस तरह की हरकत की है। उन्होंने कहा कि TMC की तरफ से इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। वहीं भाजपा की युवा नेता अमित गोराई ने कहा कि TMC द्वारा भाजपा पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। भाजपा के पास सांगठनिक तौर पर करने के लिए बहुत सारा काम है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये TMC के अंदरूनी कलह का नतीजा है। গত পরশু দিনকে কুলটির যেটা DPS মোড়, চীনাগুড়ি DPS মোড়, সেখানে দুটি শত্রুঘ্ন সিনহা ব্যানার লাগানো হয়েছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে সেই ব্যানার দুটো ছিঁড়ে টেনে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তৃণমূলের অভিযোগ যে বিরোধীরা হারার ভয়ে এইসব করছে। দেখুন, এটা ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের ফসল। বিজেপির নিজের এত সাংগঠনিক কাজকর্ম রয়েছে যে কোথায় TMCর ব্যানার লাগলো, কোথায় TMCর ব্যানার পড়লো না পড়লো, এগুলো নিয়ে বিজেপির মাথা ঘামাবার সময় নেই। ওদের ব্যানার ছেঁড়াছেড়ি ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে দেখুন, ওদেরই গোষ্ঠী কোন্দলের এটা ফসল একটা। ওরা বলেছে কমিশনকে জানাবে, এবারটা আপনারা কি? অবশ্যই ওনারা কমিশনকে জানান এবং আমরাও কমিশনকে বলবো নিরপেক্ষ তদন্ত করুন। যদি বিজেপির ওখানে দোষী না পাওয়া যায় তাহলে বলুন, TMCর যারা উচ্চ নেতৃত্ব আছে, যারা বিজেপির উপর আরোপ লাগাচ্ছে, তারা সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইবেন। আমি এখনও জোর গলায় বলছি, বিজেপির কাজ এটা নয়, বিজেপি এই ধরনের কাজ করে না। বিজেপির শিক্ষা দীক্ষা মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা TMCরই গোষ্ঠী কোন্দলের ফসল। আপনার নাম? আমি অমিত কুমার গড়াই। কি পোস্টে আছেন? আমি রাজ্য কমিটি যুব মোর্চার সদস্য, বর্ধমান দুর্গাপুর বর্ধমানের ইনচার্জ যুব মোর্চার। আমাদের আসন্ন লোকসভা যে চুনাव আসছে তারই আমাদের KKC ইউনিয়ন তরফ থেকে TMC প্রার্থীর সামনে আমরা ব্যানার লাগিয়েছিলাম, পরশু লাগিয়েছিলাম। তো আজ সকালে দেখছি ব্যানারটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ও একটা ওই সাইডে ছিল, একটা এই সাইডে ছিল, ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। দুটোই ছিল। কারা করেছে বলে মনে হচ্ছে? কারা করেছে খুবই মানে কি বলবো, খুব ডিমান্ডেড লোক যারা করেছে। এমনি করাটা একটা ঝামেলা সৃষ্টি করছে। মানে আমরা মেনে নিয়েছি, ওরা কিন্তু হার মেনে নিয়েছি। নাহলে আজ পর্যন্ত আমাদের 100 নম্বর ওয়ার্ডে এটা কোনোদিন হয়নি। এটা প্রথমবার হয়েছে TMCর পোস্টার ছেড়ে দেওয়া। তার মানে আমরা বুঝছি ওরা হার মেনে নিয়েছে, এটা নোংরা কাজ করছে। কারা করছে বলে মনে করছেন? এটা কারা করছে? বিরোধীরাই করেছে। এবারে আমরা তো দেখিনি কারা করেছে, তবু আর কে করবে? যাদের সঙ্গে আমাদের এখানে দুটা প্রার্থীর যাদের মধ্যে প্যাসেল আছে ওরাই করেছে, বিরোধী লোক করেছে। আমরা প্রশাসনিক খবর দিয়েছি, প্রশাসনও আসছে। আমরা লিখিত ইলেকশন কমিশনকে আমরা লিখিত কমপ্লেন করব। এটা খুবই নোংরা কাজ, এমনি রাজনীতি হয় না, এটা নোংরা রাজনীতি। আপনার নাম? রতন বসি, আমি এখানকার সেক্রেটারি আছি KKC। সেই ব্যানারটা ছিঁড়ে দিয়েছে, কি বলবেন? দুটো ব্যানার। দেখুন, এটা তো বিজেপির কালচার। আপনারা জানেন যে জামুরিয়াতে এক বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।
চীনাকুড়িতে ফ্ল্যাগ ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা রামনবমীকে হাতিয়ার করার চেষ্টা করেছিল, প্রশাসন শক্ত হাতে মোকাবিলা করে সেটাকে আটকে দিয়েছে। তাই এখন এরা বিভিন্নভাবে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আসানসোলে ওরা বুঝে গেছে যে ভোটে হেরে যাবে, তাই একটা করে এসব করে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আমি আমার কর্মীদিকে বলেছি শান্ত থাকুন এবং এদের কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। জবাব দেবে জনগণ, মামাটি মানুষের যারা মানুষ, সেই 13 তারিখে ব্যালট বক্সে এই জবাব পেয়ে যাবে। আপনারা কি ইলেকশন কমিশনকে জানাবেন এইসব ব্যাপারে? 100 বার আমাদের ইলেকশন কমিশনে রিপোর্ট করা হয়েছে অলরেডি, আমরা জানিয়েছি ব্যাপারটা। এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ইলেকশন কমিশন আর কাকে বলবো। বিজেপি বলছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ঝান্ডা ছিঁড়ে দিয়েছে, ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে, কি বলবেন? বিজেপি বলছে যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে ব্যানার ছিঁড়ে বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন যে বারাবণীতে চেয়ার ছুড়ি হয়েছিল কি 400 পার? বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবার নতুন করে বলতে হবে নাকি? যেভাবে ইলেকশন প্রথম ব্যাপার হলো অশান্তি, কি মনে করছেন আসানসোলে আসানসোলের মানুষ শান্তি চায়। যদি কেউ অশান্তি করে তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলবে, এবং আমার ধারণা প্রতিবারের মতো আসানসোলে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে, মানুষ ভোট দেবে। আমরা শুধু ভয় পাচ্ছি প্রকৃতির যে রুদ্র রূপ, যেভাবে গরম বাড়ছে। আমরা আমাদের দলীয় কর্মীদেরকেও বলছি, বিরোধীদেরও বলবো যে দুপুরবেলাটা অ্যাভয়েড করুন, প্রচন্ড রোদে জল খান, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड अंतर्गत दिलदार नगर के ऊपर पाड़ा इलाके में रूबी शर्मा नामक एक महिला ने आरोप लगाया कि स्थानीय दुकानदार गुजगुज राय द्वारा उनके पति की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे उनका पैर टूट गया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब उस दुकानदार ने किसी के साथ इस तरह की हरकत की हो। रूबी शर्मा ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, आज उस व्यक्ति ने उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की। ये जो स्थानीय 2 युवक बीच में आ गए, जिससे उनकी जान बच गई, वरना आज गुजगुज राय उनकी भी पिटाई कर देते। उन्होंने कहा कि इलाके में दबंगई करने के लिए वो व्यक्ति बाहर से युवकों को लाता है और इलाके के लोगों को परेशान करता है। दूसरी तरफ इलाके के ही रहने वाले अरुण रजक ने भी उस व्यक्ति पर आरोप लगाया और कहा कि वह हमेशा एक बांस लेकर बैठा रहता है और लोगों को डराता है। उन्होंने भी रूबी शर्मा की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि रूबी शर्मा के पति की उस व्यक्ति ने बेरहमी से पिटाई की थी। आज रूबी शर्मा के साथ भी न सिर्फ मारपीट करने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ बदतमीज़ी भी की। अरुण रजक ने यह भी आरोप लगाया कि गुजगुज राय इलाके में नशे का भी कारोबार करवाता है। पब्लिक से क्या पूछिए कौन इसका दुकान में सामान छीनता है? पहले पूरा पब्लिक का बोलता है, पहले बोलने पूछिए कौन ढुका है, कौन बोले दुकान पे पहले गया उधर से आया। आपका नाम? आपका नाम? रूबी रजक। मेरा हस्बैंड को मारा बेवजह, पूछिए सैलून में, हम नहीं थे। कल 10:30 19 तारीख को, ठीक है, पैर टूट गया उसका, हॉस्पिटल में भर्ती है। ई बात से मारा, हाँ गुजगुज रहे ये मारा है। उसके बाद आज क्या हुआ, हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, दुकान तरफ से आ रहे हैं, ये हमको झोटा पकड़ के दुकान में ले जाके डंडा खोज रहा है। डंडा अभी नुका के रख दिया इधर। तो ये लड़का लोग आया, दूठो बचाने, शटर गिरा रहा था, माथा पर गिरता, ये लड़का दूठो रोका तो उसको बोला कि दो दुकान लूट रहा है मेरा। अब बोला जो कोई कुछ नहीं करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। बोला थाना में भी पैसा दिए, सबको पैसा खिलाए, कोई कुछ नहीं करेगा। ये हमेशा ऐसे करता है, बाहर से आदमी बुलाता है झगड़ा कर। इसका हमेशा थाना में देखिए हम लोग सारा ऐसा झूठ झमेला नहीं, हम लोग मंदिर में है। अब मेरा कारण से ही सबको मंदिर में सब लेडीज लोग को ही गाली देता है कि सब गलत औरत है। ये कौन होता है बोलो, ये सही है? गुजगुज रॉय, गुजगुज रॉय। रूबी शर्मा। हुआ आज सुबह में हम लोग यहाँ पे थे, जितना सुबह में ये डेली पर डे का नियम है, एक दिन का नियम नहीं, पर डे का नियम है। यहाँ गांजा बनाएगा, 4 को लड़का को बैठाएगा, गांजा काटेगा, डेली थूकेगा। हम लोग बहुत बार मना किए, पुलिस को भी हम लोग फोन किए, सब कुछ किए, फिर क्या होता नहीं पता हमको उसके बारे में, ठीक है। बगल में स्कूल है, डेली सुबह में उठ के गाना कस कस के बजा देगा। स्कूल चलते बेचारा मास्टर जी 10 मरते बोलता है, सुनता फिर भी नहीं सुनता। आज सुबह में क्या लेडीज तो आया और हम लोग यहाँ खा रहे थे,
खा रहा था, बस ये लेडीज को काके एक झोटा ऐसे करके पकड़ा कस के, अब मारा एक पड़ा खींच के रूबी शर्मा को। ठीक है, तब तक हम लोग दोनों बचाने के लिए गए, हम लोग दोनों भाई। हम एक मिनट, और हमेशा इसको मोटा बात से लेकर रहता है हमेशा। ठीक है, और बात से इसको मारने का हमला किया तो हम लोग बचाने का शटर को बंद कर रहा था तो इनका माथा में लगता है, तो उसको बचाने के चक्कर में क्या किया, शटर को भी हल्का छोड़ के ये गाड़ी लेके चला गया। उधर से गाड़ी लेके ये आया रिटर्न, तब तक सामान अपने आप ये फेंका है। हम लोग वहां बैठे हुए थे, सामान यहाँ आकर फेंका। जब हम लोग आकर देखे तो ये सामान खुद फेंका। पुलिस को हम लोग बोले हैं, गए भी थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो शायद काची बोले, रूबी दीदी काची बोले, पुलिस क्या बोले, हाँ गया तो बोला ठीक है सर, फोन नंबर लिया, पुलिस गया वहां से, फोन नंबर लिया, बोला हम आएंगे। तो फिर हम लोग फोन किए पुलिस को, अभी तक कोई भी पुलिस, हम लोग मोहल्ला का आदमी चाह रहे थे इसको, इनको यहाँ बंद करवा दीजिए। गांजा पी के और डेली गाली गलौज, अपना से यहाँ बच्चा लोग है, ये पर डे का नियम है भैया, पर डे का कोई ऐसा दिन नहीं है जो नहीं झमेला होता। यहाँ का काउंसलर का भी हम लोग बोले, काउंसलर भी बोल रहा है तुम लोग पहले मारो उसको, लेडीज लोग। अरुण रजक। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614।
नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा में मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, टीएमसी की तरफ से प्रचार में और जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आसनसोल के रविंद्र भवन में बावरी समाज की तरफ से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, आसनसोल नगर निगम के एमएमआई गुरदास चैटर्जी के अलावा बावरी समाज से जुड़े तमाम वरिष्ठ और विशिष्ट लोग उपस्थित थे। সারিতে বসে আছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেখুন, আমরা যখন মেয়ের বিয়ে দিই তখন আমরা প্রথমেই আশেপাশে জিজ্ঞেস করি যে পাত্র বা পাত্রীর বংশ পরিচয় নিয়ে কেমন হবে, তারপরে মেয়ের হাত দিই। তেমনি নির্বাচন যখন আসে তখন এটাও জেনে নেওয়া উচিত যে আমরা 5 বছরের জন্য কার হাতে এই এমপি কে তুলে ধরব। তাই আজকে প্রার্থী পরিচিতি বিশেষ প্রয়োজন। একদিকে শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী যিনি দার্জিলিং থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসছেন, নিখোঁজ হয়ে গেছে সাংসদ, এসে এলেন দুর্গাপুর যে নিখোঁজ সাংসদকে পাওয়া যাচ্ছে না, আর এবারে এসে দাঁড়িয়েছে আসানসোলে। তাকে এইবারে কিন্তু এই বাবরি সমাজ উচিত শিক্ষা দিয়ে পাঠাবে এবং 3 লক্ষ ভোটে আগের বার আপনারা শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে জিতেছিলেন, এবারে 4 লক্ষ ভোটে জিতিয়ে প্রমাণ করে দিন যে বাউরি সমাজ চিরদিন তৃণমূলের পাশে থাকবে। তাই আজকের দিনে আমরা যে শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে পেয়েছি, কিছুদিন আগেই যে বাই ইলেকশনে আপনারা শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে ভোট দিয়েছিলেন, তার পরিণাম স্বরূপ আমাদের প্রতিটা ওয়ার্ডে উনি এই কম সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজ করে গেছেন, প্রচুর রাস্তাঘাট লাইট উনি দিয়েছেন। আশা করি 5 বছরের জন্য ওনার হাতে যদি আমরা আমাদের ভোট তুলে দিয়ে ওই কেন্দ্র সরকারে পাঠাতে পারি, তাহলে আসানসোলের আরো অনেক উন্নতি আমরা করতে পারবো। তাই আজকের দিনে এই বাউরি সমাজকে শপথ নিতে হবে যে আপনারা শুধু নন, আপনাদের আশেপাশে যারা আছে সবাইকে বলুন যে এই বেঈমান ছদ্মবেশে সাধু সেজে যিনি ভোট নিয়ে যাচ্ছেন তিনি একটা লুটেরা বিজেপিকে আর ভোট নয়, আর ভুল নয়। এইটুকু কথা বলে সবাইকে জাতীয়তাবাদী। যেমন পরিযায়ী পাখি হয়, দেখবেন শীতকালে অনেক ভালো ভালো পাখি উড়তে দেখা যায় এবং এলাকায় এলাকায় বসতে দেখা যায়। এরকম কিছু পরিযায়ী পাখি আছে, পরিযায়ী নেতা আছে, যারা ভোট এলেই তাদেরকে দেখা যায় আর ভোট এলেই ঘুরতে দেখা যায়। এরা 365 দিন মানুষের কাজ করে না। এরা কি করে না, ভোটের ঠিক আগে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কিভাবে টাকা বিলি করে ভোট কেনা যায়, কিভাবে আরো কিছু জিনিস দিয়ে ভোটটাকে নেওয়া যায়, এরা কিন্তু সেই চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন, ভোটের আগে যারা টাকা দিতে আসে সেই টাকাটা 5 বছরে একবার, ভোটের পরে জিতুক বা হারুক তাদের কিন্তু আর দেখা পাওয়া যায় না। আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেই আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আপনার বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে বিনা পয়সায় মমতা ব্যানার্জির অ্যাম্বুলেন্সই আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এবং আপনার মেয়ের বিয়ে হলে রূপশ্রী প্রকল্পে মমতা ব্যানার্জি 25,000 টাকা করে আপনাদের বিয়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তাই কে কাজ করে আর কে কাজ করে না এই সিদ্ধান্ত কিন্তু মানুষকে নিতে হবে। বিশেষ করে বাউরি সমাজকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ ভোট এমন একটা জিনিস, আপনারা জানেন আমাদের সংবিধানে মানুষের সবথেকে বড় অধিকার হচ্ছে ভোটের অধিকার।
আপনি একটা ভোট দিয়ে যেমন কাউকে চেয়ারে বসাতে পারেন, গদিতে বসাতে পারেন, আবার আপনি একটা ভোট না দিয়ে তাকে গদির থেকে নামিয়েও দিতে পারেন। তাই এত বড় ক্ষমতা হচ্ছে ভোটের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, এবং একবার যদি ভুল প্রয়োগ হয়, একবার যদি ভুল জায়গায় ভোট দেন, সেটাকে শোধরাতে কিন্তু 5টা বছর অপেক্ষা করতে হবে। যদি এমপিতে আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নেন, 5 বছর পরে এমপির ভোট আসবে। এমএলএতে যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেন, 5 বছর পরে এমএলএর ভোট আসবে। কাউন্সিলর যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেন, 5 বছর পরেই কিন্তু কাউন্সিলরের ভোট আসে। তাই সিদ্ধান্ত সঠিক নিতে হবে। আমাদের जाति लोकशाही नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम लोग बावरी समाज या हमारा बंगाल परिवार आज एकजुट और एकजुट है। बंगाल का दीदी का जो अपमान किया पिछली बार, दीदी और दीदी, और इस बार भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इस तरह की बातें कर रहे, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा बंगाल भारत की सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए भाइयों, मैं जानता हूं देर हो चुकी है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बेशी समय নেব না আমি। আপনারা শুধু এই বলতে চাই, আপনারা আসুন एक कदम बढ़ा के ममता जी के हाथों को मजबूत करें, ममता जी के कदमों में और गति पहुंचाएं, और इनके ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को देखते हुए हम सब मिलके ऐसा जवाब दें जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल रह चुका हूं, और मैं उनकी लोकशाही में था, उनकी तानाशाही में छोड़ के बाहर आ गया। मुझ जैसा खुदकार आदमी वहां नहीं रह सकता था, और इसलिए आज सही दिशा में, नई दिशा में, ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी के व्यक्तित्व को अपने अंदर स्वीकारते हुए हमेशा के लिए आया हूं। तो आया हूं अपने तृणमूल कांग्रेस में ममता जी के नेतृत्व में। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मेरा 3 घर है, एक है पटना, एक है मुंबई, और एक अब है अपना आसनसोल। ये मेरा है। अपने घर वालों के बीच में आया हूं मैं, और अब आगे बढ़ो आप लोग। अगर जानू या हमारे भानु यहां बोल रहे होते तो मैं कहता कि अब वक्त आ गया है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है मोदी जी, दीदी का दौर आएगा, और ये इस दौर में हम सबको साथ मिलकर चलना है। हम वही आपको आमंत्रित करने आए हैं। आप सबों ने इतनी देरी के बावजूद इतने प्यार से हमारी बात सुनी, मान सम्मान के साथ आप सबों का बहुत। आसनसोल लोकसभा केंद्र से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। पूनम सिन्हा ने यहाँ पर सभी विधि विधान का पालन करते हुए मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक पत्नी अपने पति के लिए चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में और क्या मांग सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मां कल्याणेश्वरी से यही प्रार्थना की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीत हासिल हो। उन्होंने कहा कि उनको पूरा भरोसा है कि मां उनकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगी। तृणमूल कांग्रेस मनोनीत प्रार्थी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी ওনার স্ত্রী এসেছিলেন পুনম সিনহাজি। উনি কল্যাণেশ্বরীতে মায়ের কাছে পুজো দিয়েছেন। জয় সম্পর্কে মায়ের কাছে উনি প্রার্থনা করেছেন। তার সঙ্গে আমাদের ডেঙ্গুয়া অঞ্চলের পুরুষ মহিলা সহ ব্যাপক মানুষ ছিলেন। ওনাকে স্বাগত আমরা জানালাম এবং মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন। আমাদের কল্যাণেশ্বরী ডেঙ্গুয়া অঞ্চলের মানুষ খুবই উৎসাহিত। উনি এসে আমাদেরকে আরও ভোটে খাটার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন এবং আমাদেরকে এনার্জি দিলেন কি আমরা আরও বাড়ি বাড়িতে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি।
আমাদের পার্টির কথাটা আমরা তুলে ধরতে পারি, এই নির্দেশগুলো দিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ তিওয়ারি, আমি সালানপুর ব্লকের আইএনটিসির সভাপতি। आप ही बताइए क्या मांगे? एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। तरक्की और प्रार्थना करने आए हैं कि पिछली बार से जितने मार्जिन से उन्होंने जीता, ये टाइम उससे भी और ज्यादा आगे मार्जिन से जीत के आए। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।